Good afternoon, kids. Good afternoon, ma'am. How are you all? I am fine, ma'am. Okay. So, kids, you know what is going on today? Yes. Yes. We will start chapter number 7. What is the name of chapter number 7? Teeth and tongue. Yes, teeth and tongue. In this chapter, we will learn about our teeth and tongue. Okay? So let's start. Okay. Kids, as you know, teeth is very important part of our body. ये जो teeth होते हैं आपकी बॉडी में बहुत important part होते हैं, है ना? When you smile, है ना? Your teeth are showing होता है ना अदर पर्सन को, है ना? तो teeth से आपकी स्माइल अच्छी होती है, ठीक है? आपकी पूरी बॉडी को आपके जो फेस है उसको प्रॉपर शेप मिलती है, ठीक है? So our teeth are important part of our body. Teeth are important part of our body. They give proper shape. They give proper shape to our face. तो हमारे फेस को प्रॉपर शेप कौन देते हैं? Teeth. They help us in biting and chewing. They help us in biting and chewing. They help us to speak clearly. They help us to speak clearly. They help us to Yes. आपको पता है teeth आपकी हेल्प करते हैं, आप जो क्लियरली स्पीक कर पाते हो किसकी हेल्प से? teeth भी हेल्प करती है और टंग भी हेल्प करती है, ठीक है? कुछ वर्ड्स teeth की हेल्प से स्पीक किए जाते हैं, कुछ वर्ड्स some words we speak with our tongue. Okay, तो both are important. Understood? So why teeth are important? Why teeth are important? Because wait. Yes, Janvi. Yes, because they give proper shape to our face. Anuja. Yes, they help us to biting and chewing. Say it, Kritika. And next point is teeth help us to speak properly, speak clearly. ठीक है? Understood? Okay. Now kids, you know there are two set of teeth. आपको पता है इन humans, हम जो humans हैं हम सब में two set of teeth होते हैं. Means teeth जो है वो उसके two sets होते हैं. कौन कौन से होते हैं? Who will tell me? Wait, yes Akash? And very good, clapping. There are two set of teeth. Sit down. First is temporary teeth and second is permanent teeth. Temporary teeth and permanent teeth. What is the other name of temporary teeth? No one. I'm asking someone. Yes, Manas? What is the other name of temporary teeth? I'm asking other name. Yes, Arman? Very good. Milk teeth. So we call milk teeth temporary teeth. The other name of milk teeth is temporary teeth. है ना? तो मिल्क टीथ को ही टेम्परेरी टीथ बोलते हैं क्योंकि थोड़े टाइम के लिए होते हैं ना. Sit. A baby has no teeth. जो छोटे बेबी जब बेबी बर्थ करते हैं तो उनके टीथ होते हैं क्या? They have teeth? No, they don't have teeth. जो स्मॉल किड्स आते हैं जब बर्थ करते हैं ना रिसेंटली तो छोटू से होते हैं उनके कोई टीथ नहीं होते ना. Yes, when they are born, जब वो
जन्म लेते हैं, जब उनका बॉर्न होता है तो उनके पास टीथ यस द फर्स्ट टूथ comes out when the baby is about 6 months. तो फर्स्ट टूथ, जो फर्स्ट टूथ आता है किसी भी बेबी को, वो कौन से मंथ में आता है बेटा? 6 मंथ में। जब बेबी 6 मंथ का आता होता है तब उसका फर्स्ट टूथ आता है। क्लियर? बाय द एज ऑफ 2-3 by the age of 2-3 years a baby has about 20 teeth 20 teeth। तो जब बेबी 2 या 3 इयर्स का हो जाता है, जब तक वो 3 इयर्स तक का हो जाता है तब उसके पास पूरे टोटल 20 टीथ का सेट हो जाता है। ठीक है? The first set of teeth is called milk teeth. The first set of teeth is called milk teeth. yeah. So there are 2 sets. First set of teeth is milk teeth. Okay, which is completed in 2 or 3 years. 2 और 3 years के हो जाते हो तब आपके जो छोटे बेबी होते हैं उनके पूरे 20 सेट हो जाते हैं। 10 in lower jaw and upper jaw. Very good. Next, when a child is about 6 years, when a child is about 6 years, जब कोई बच्चा 6 year old होता है, milk teeth began to fall. Milk teeth began to spelling is wrong, it is fall. तो क्या होता है कि जब छोटे बेबी होते हैं ना, जब 6 इयर्स के हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके टीथ गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, है ना? They are replaced by new set of teeth. अब वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? न्यू सेट ऑफ टीथ। They are called permanent teeth. जब मिल्क टीथ बेटा गिर जाते हैं उसकी प्लेस पे जब न्यू टीथ आते हैं उनको बोलते हैं permanent teeth. By the age of 12 years, all milk teeth are replaced. जब आप लोग 12 इयर्स तक हो जाओगे तब आपके पूरे मिल्क टीथ रिप्लेस्ड हो जाएंगे, उनके प्लेस पर न्यू परमानेंट टीथ आ जाएंगे। ओके, बाय 20 सेट मीन्स अ सेट ऑफ 20 परमानेंट टीथ। कितने टीथ आएंगे? 20 परमानेंट टीथ। बट आपने सुना होगा कि टोटल 32 टीथ होते हैं, है ना? तो 4 और 4 का भी माइनस है इसमें से। सो लिसन, 4 more teeth grow between the age of 12 to 21. no it's beta it's 20 to 30 years, 20 to 30 years. Okay, so 4 teeth grow between the age of 20 to 30 years. They are called wisdom teeth. So wisdom teeth are grow in 20 to 30 years. Okay, जब आप 20 से 30 years के हो जाओगे तब wisdom teeth आते हैं. Okay, clear? Next, an adult has 32 permanent teeth. अब टोटल कितने टीथ हो गए हैं? 32 परमानेंट टीथ हो गए हैं, क्योंकि 20 एज तो कौन सी एज तक आ गए बेटा? 28 टीथ बच्चे कब परमानेंट हो जाते हैं? जब आप लोग 12 इयर्स के हो जाते हो। अभी आपने पढ़ा है ना यहाँ पे 12 इयर्स तक आपके सारे मिल्क टीथ रिप्लेस्ड हो जाते हैं और टोटल सेट ऑफ परमानेंट टीथ कितने हो जाएंगे? 28। अब जो रिमेनिंग 4 विजडम टीथ हैं, ओके, दो ग्रो इन 20 to 30 years. They grow in 20 to 30 years. Clear? So now an adult has 32 permanent teeth. An adult has 32 permanent
टीथ। समझ में आ गया? जब आप बिल्कुल फुल्ली ग्रोन पर्सन हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, तो टोटल टीथ कितने होंगे? 32। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ टूथ। टूथ मीन्स वन की बात हो रही है। ओके, वन एंड मैनी आपने लोगों वैसे ही आपको समझ में आता है ना। सिंगुलर एंड प्लूरल, टूथ इज वन टूथ एंड टीथ इज अ प्लूरल। टीथ इज अ प्लूरल ऑफ टूथ। ओके, सो देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। आपके एक दांत का स्ट्रक्चर है। क्लियर? सो अ टूथ इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। आपका जो टूथ है वो उसके टू मेन पार्ट्स हैं। एक तो क्राउन और एक रूट। वन इज क्राउन एंड वन इज two main parts, okay, in the structure of tooth. Okay, you see there is a neck. Neck is the middle part of crown and root. This is the middle part of crown and root. Clear? So tell me, a tooth is divided into how many parts? Two main parts, which are crown and root. Crown and neck is the middle part. Middle part of crown and root. Clear? Yes, ma'am. Okay. So now your tooth is divided in some other parts, which is first is crown part में देखो बेटा यहाँ पर क्या क्या है? Enamel. This is dentine. This is dentine. This part. Okay. This part is a gum and this part is pulp. Okay. अब देखो ये जो enamel दिख रहा है ना आपको, enamel, yes, ये जो आपका व्हाइट पार्ट आपको जो दिखता है, जो व्हाइट आउटर कवरिंग जो हम देखते हैं जब आप स्माइल करते हो, जब आप स्पीक करते हो, जो दिखता है व्हाइट कवरिंग, विच इज कॉल्ड इनेमल, विच इज कॉल्ड इनेमल. सो अ टूथ हैज एन आउटर व्हाइट कवरिंग कॉल्ड इनेमल. तो आपके टूथ में जो व्हाइट कवरिंग होती है, जो सबके टीथ व्हाइट कलर के दिखते हैं, विच इज कॉल्ड एनामल. Which is called enamel. This is the hardest substance. This is the hardest substance. Akash, what happened, beta? What happened? Look at front. Don't talk. Okay. So, which is the hardest substance of our body? Enamel. Which is the hardest substance of our body? Yes, it is the white outer covering. It is the white outer covering. So there is the one question for you. What is the name of white outer covering of our tooth called? Enamel. Very good. Enamel. Clear? Now you see the yellow part. You see here yellow part, which is called? Which is called dentine. Which is called dentine. Yes. तो the dentine support the enamel. तो dentine क्या करता है? Support करता है किसको? enamel को. enamel को क्या करता है? Support करता है. ठीक है? समझ आया? Is it clear? Okay. Now you see there is a pulp. This part, this pink part, there are lots of nerves. You see there yellow, blue. हाँ, ये आपको जो दिख रहा है ना, जहाँ पर बहुत सारी nerves है, blood vessels है, दिख रहा है? हाँ, this part is called pulp. This part is called pulp. Yes. So what is the work of pulp? Say, listen, look at here. The center of each tooth is called pulp. किसी भी टूथ का जो सेंटर पार्ट होता है, मीन्स जो बीच वाला पार्ट होता है, विच इज कॉल्ड
Pulp, okay? It is soft and has blood vessels and nerves. तो ये वो पार्ट होता है जहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती है. Kids, you learn about the nerves in your previous chapter. What is the work of nerves? Yes, send messages to the brain. If you feel pain, अगर आपको कोई पेन फील होता है आपके टूथ में तो आपको कैसे पता चलेगा? Nerve send the message to the brain, है ना? समझ आ गया? And blood vessel, what is the work of blood vessels? To provide the blood to the tooth. Okay, our heart pumps blood to all parts of our body, and the work of blood vessels is to circulate the blood to whole our body parts. Okay, these are work like a tubes, है ना? जैसे पाइप से पानी आता है ना, वैसे ही वो वर्क होता है इनका. ठीक है, आपको ब्लड को सर्कुलेट करना. क्लियर? लास्ट इज गम्स. लास्ट पार्ट आपको जो दिख रहा है वो क्या है? गम. फिर हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. गम्स आर द सॉफ्ट पिंक टिश्यूज. पिंक tissues. You know what is tissues? You know what is tissues? Okay, I will tell you. Listen beta, our body is made up of so many cells. Okay, there are smallest unit of our body is called cell. हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल. क्या होता है? दिस वन, जस्ट लाइक दिस इज सेल. ओके, इट्स अ वन डॉट. समझ में आ गया? तो दिस इज अ सेल. सो बहुत सारी जब सेल्स होती है वो मेक करती है एक टिश्यू बनाती है. ये बहुत सारी सेल्स एक टिश्यू में आ जाती है. दिस इज कॉल्ड टिश्यू. ओके, एंड डिफरेंट टिश्यूज मेड एन ऑर्गन. तो सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं आपकी बॉडी में. क्लियर? सो गम इज अ सॉफ्ट टिश्यू. क्या होता है हमारे गम? सॉफ्ट टिश्यू. विच कलर ऑफ द गम? पिंक. वेरी गुड. इन द माउथ दैट होल्ड आवर टीथ इन प्लेस. ये हमारे टीथ को होल्ड मीन्स पकड़ के रखता है. क्लियर? ओके, नाउ लास्ट वन इज रूट. Last one is yes. You see, this part is root. So root is the part of the tooth present inside the gum. ये जो रूट आ रहा है क्राउन. अब ये वाला पार्ट आपने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक. ये कौन सा पार्ट है? क्राउन. और जितना भी पार्ट आपका नीचे जा रहा है मीन्स आपके गम्स के अंदर जा रहा है. विच पार्ट इज कॉल्ड रूट. दिस इज रूट. क्लियर? समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स वी रिवाइज. ओके, लेट्स वी रिवाइज इट. सो किड्स, a tooth has two main parts. A tooth has two main parts. First is crown. Second is root. And middle part is called nap. Yes. So there are some other parts. Tell me the name. What is the outer white covering called? Enamel. Okay. And below the enamel, which part is it? Dentine. Okay, D-E-N-T-I-N-E, dentine. Okay, next is gums. You know gums? What we call gums in Hindi? Masude. Which color is? Pink. Yes. And last is pulp. Okay. Now tell me, in which part blood vessels and nerves found in our tooth? Pulp. Which part? Pulp. Very good. What is the outer covering called? Outer covering? Enamel. And
Which part support the enamel? Dentine. Beta, it's called dentine. Dentine. Okay. So is it clear? Structure of a tooth. This is the structure of clear. Okay. Now types of teeth. अब आपके जो आपके माउथ में जो टीथ है ना, वो क्या सभी सिमिलर शेप के लगते हैं? नहीं ना, उनकी डिफरेंट क्या होती है? शेप्स होती है ना? तो दे आर द टाइप्स ऑफ टीथ. दे आर द टाइप्स ऑफ टीथ. देखो कौन कौन से आपके टीथ होते हैं. इंसिजर, INCISOR. This is incisor. This part is, this teeth is canine. CANINE, canine. तो सबसे आगे के 4 फ्रंट जो टीथ होते हैं हमारे, सबसे आगे वाले जो फ्रंट टीथ होते हैं जो कि बाइटिंग में यूज करते हैं, दे आर इंसीजर्स. ओके. अब इंसीजर्स के जो दोनों साइड होते हैं, दे आर कैनाइन्स. दे आर ओके. आफ्टर कैनाइन्स there are premolars and last are they. So how many types of teeth? 4. There are 4 types of teeth. What are their names? Incisors, canines, premolars and molars. Very good. So we have different types of teeth in our माउथ. तो हमारे टीथ में अलग अलग तरह के टीथ होते हैं ना. तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? इंसीजर्स. ओके. इंसीजर्स और बाइटिंग टीथ. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इंसीजर्स? बाइटिंग टीथ. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इंसीजर? बाइटिंग टीथ. ओके. दे आर 4 फ्रंट टीथ. जो आपको सबसे आगे 4 फ्रंट टीथ दिखते हैं ना, दे आर 4 फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर्स और बाइटिंग टीथ. ओके. दे आर प्रेजेंट इन आवर बोथ जॉब्स. दोनों जॉब्स में होते हैं. ओके. विथ शार्प एंड स्ट्रेट कटिंग. ओके. तो ये शार्प होते हैं और स्ट्रेट कटिंग एड्स होते हैं इसमें. ठीक है. दे आर यूज टू बाइट इनटू आवर फूड. आप जो फूड बाइट करते हैं वो कौन से टीथ की हेल्प से करते हैं? वी बाइट विथ इंसीजर टीथ. वी बाइट विथ. शो मी योर इंसीजर टीथ. Yes. Now let's we talk about canines. Canines. Okay. So there are 1, 2, 3, 4 are incisors. Okay. After incisors, both side, two in lower jaw and 2 in upper jaw, canines are present. So canines are tearing teeth. What we call it? Tearing. Okay, so there is a question. Which teeth are called biting teeth? Which teeth is called which teeth are called tearing teeth? Very good. So they are also present in our both jaws. One on each side of incisor. One on each side of incisor. They are used to tear flesh. They are used to tear फ्लैश. ओके. तो इनका क्या वर्क होता है? ये किस काम आते हैं? आपका जो फ्लैश होता है उसको क्या करने में? फाड़ने में. ओके. इज इट क्लियर? ओके किड्स. सो नाउ नेक्स्ट आर premolars. They are called grinding teeth. They are called grinding का means, what is the meaning of grinding? मम्मा घर पे चटनी ग्राइंड करती है ना? हाँ. किस पे? मिक्सर. मिक्सी में. आपके घर में मिक्सचर होगा ना? मिक्सी होगा ना?
है ना। तो मम्मा उसमें एक मिक्सचर बनाती है, उसको आप चटनी बोलते हो, है ना। तो वो क्या होती है, ग्राइंड होती है ना। सो ये भी क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का वो करते हैं आपके माउथ में। सो दे आर कॉल्ड प्रीमोलार्स। तो नेम द अदर नेम ऑफ ग्राइंडिंग टीथ। यस, दे आर 4 फ्लैट टीथ। दे आर, ठीक है, 2 ऑन साइड ऑफ द कैनाइन्स। अभी कहाँ आ रहे हैं, कैनाइन्स के बाद। ओके, दे ग्राइंड एंड मैश द फूड वी ईट। हम जो भी फूड खाते हैं, जो च्यू कर रहे हैं, वो कहां से, कौन से टीथ से कर रहे हैं, प्रीमोलार्स। ओके, नेक्स्ट आर मोलार्स। नेक्स्ट आर मोलार्स और च्युइंगिंग टीथ। मोलार्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, च्यू। दे आर 6 in each jaw। They are 6 in each jaw। मीन्स आपकी एक jaw में ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 is there and 3 is other side। Okay, 3 on each side of premolars। They are broad teeth which help in chewing food। तो किस में हेल्प करते हैं, chewing करने में, ठीक है। तो tell me, name the other name of grinding teeth and other name of chewing teeth। Clear? Okay, so again let's be revise। Okay, look at here, all of you। So kids, count। I means incisor। I means C means P means P means and M means molar। Understood? Now count the teeth। How many incisors in one jaw? Count it, 1 2 3 4। How many incisors? 4। Now count canines, 1 2। How many canines in a one jaw? 2। Now count premolars, 1 2 3 4। How many? Total 4। 1 2 is this side and 2 is other side। Okay, and count the molars, 1 2 3। 3 is here and 3 is other side, 1 2 3। So total are 6। Okay, तो ये आपका 1 jaw की बात हो रही है। तो how many incisors? 4। How many canines? 2। How many premolars? How many premolars? And how many molars? In a, okay, clear? Now count how there are 32 teeth। कैसे आपके 32 teeth हैं, ठीक है। Look at here, 4 incisors। ओके, ये अपर जाव में, अपर जाव की आपने बात कर ली। सेम लोअर जाव में होंगे, ठीक है। 4 इंसिजर्स आपके अपर जाव में एंड 4 is 2 canines are in upper jaw and 2 are in, yes, 4 are in, 4 premolars in upper jaw and 4 premolars are in lower jaw। 6 molars are in lower jaw। Okay, so total 16 present in our upper jaw and lower 16 present in our, तो total count करेंगे 16 plus 16 is equal to 32 teeth। समझ में आ गया? तो ऐसे हमारे 32 teeth होते हैं। क्लियर? सो 32 teeth are present in adult human being। क्लियर? ओके,
नाउ नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ टीथ। आपका जो ये टीथ है इसकी कैसे टेक केयर करना है? हरमान प्लीज डोंट टॉक। नाउ फर्स्ट पॉइंट, if we do not rinse our mouth after eating food, the leftover food particle stick our teeth. Means कि अगर आपने खाना खाने के बाद में अपने माउथ को रिंस नहीं किया, मीन्स कुल्ला नहीं किया आपने खाना खाने के बाद में, तो जो लेफ्ट ओवर फूड आपके माउथ में रह जाता है, लेफ्ट ओवर मीन्स जो बचा हुआ खाना आपके माउथ में रह जाता है, वो आपके टीथ के बीच में चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। स्टिक मीन्स चिपकना, ठीक है। अब क्या होगा? बैक्टीरिया ग्रोज, बैक्टीरिया ग्रो। अब यहाँ पर छोटे छोटे से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ऑन दीज स्टिक्ड फूड। ये जो फूड आपका स्टिक्ड हो गया है, इसके चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे। ओके, स्टिक फूड पार्टिकल कॉजिंग टू डिके वाइल डैमेज द पल्प। अब ये क्या करेगा बेटा? स्टिक हो जाएंगे ना। अभी क्या करेंगे? आपके यहाँ पे जो पल्प है ना, ये वाला पार्ट, पल्प वाला पार्ट, इसको डैमेज कर देंगे, पूरा खराब कर देंगे। तो फिर आपके क्या हो जाएगी? कैविटी, कैविटी हो जाती है ना। आपको पता कैविटी क्या होती है? तो ये क्यों हो जाती है? बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे जब अगर आपने माउथ को रिंस नहीं किया, आपने अच्छे से खाना खाने के बाद में कुल्ला नहीं किया, रिंस नहीं किया, तो क्या होगा? जो भी फूड पार्टिकल्स है वो आपके टीथ में स्टिक हो जाएंगे और उसके चारों तरफ कौन आ जाएंगे? बैक्टीरियाज ही बैक्टीरियाज आ जाएंगे, खूब सारे बैक्टीरिया। फिर वो क्या करेंगे? आपके टूथ को डैमेज कर देंगे, इसके पल्प को डैमेज कर देंगे, ठीक है। वहां पर होल्स बना देंगे और कैविटी हो जाएगी फिर। ओके, सो देखो, ये देखो यहाँ पे कैविटी दिख रहा है आपको? हाँ, yes, so look at, there are nerves present in the pulp of the tooth which sense the pain। तो जो भी नर्व्स होती है उनको पेन फील होता है जब वो बैक्टीरिया ग्रो होंगे, कैविटी लगेगी, होल्स होगा, तो आपके क्या होगा? टीथ में पेन होगा, टूथ में पेन होगा, ठीक है। वो नर्व्स जो है किसको सेंड करेगी मैसेज? ब्रेन को, है ना। So the bacteria breaks the sugar into acid। अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? जो वहां पर आगे आपके जो फूड पे जाके स्टिक हो गए हैं, फूड पे जाके चिपक गए हैं, वो लोग क्या करेंगे? आपको पता है जब माउथ में फूड जाता है ना, तो वो किस में चेंज होता है? शुगर में चेंज होता है, स्वीट हो जाता है। चाहे आप कितना भी नमकीन चीज खा लो, ग्लूकोज में चेंज होता है ना, तो आपको फूड आपका कैसे लगता है? स्वीट लगता है। तो उसको शुगर को एसिड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देंगे? बैक्टीरिया शुगर को कन्वर्ट कर देंगे किस में? एसिड में। which eat away tooth enamel। तो आपके टूथ का जो ये इनेमल पार्ट दिख रहा है व्हाइट कवरिंग वाला, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा खराब हो जाएगा। दिस कॉजेस होल इन द टीथ कॉल्ड कैविटी। इसकी वजह से आपके इनेमल में क्या हो जाएंगे? बहुत सारे होल्स ही होल्स, है ना। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने फूड में, आपका फूड के ऊपर आगे जो स्टिक था वहां पर शुगर को एसिड में चेंज कर दिया, है ना। और एसिड में चेंज होने की वजह से क्या हो गया? जो आपका ये पार्ट है व्हाइट आउटर कवरिंग, वहां पर बहुत सारे होल्स हो गए और इन होल्स को ही हम क्या बोलते हैं? कैविटी। ओके, सो नाउ plaque is a gum disease that can make our gum red, swollen and soft। प्लैक एक क्या होती है बेटा? गम डिजीज होती है, मतलब आपके मसूड़ों की एक डिजीज होती है जिससे आपके गम्स बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पर सैलोन में सूजन आ जाती है, थोड़े से वो फूल जाते हैं। ओके, किसकी वजह से?
प्लेग की वजह से। क्लियर? सो इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, ओके, सो दैट दे डू नॉट डिके और फॉल। तो ना तो वो खराब हो, ना डैमेज हो, ना ही टूटे। इसके लिए आपको क्या करना है? अपने टूथ की टेक केयर करना है, टूथ की देखभाल करनी है। तो उसके लिए क्या पॉइंट हमको रिमेंबर रखना है, क्या चीजें याद रखनी है? द पॉइंट्स वी रिमेंबर फॉर द टेक केयर ऑफ टीथ आर, कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखो बेटा, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली विथ स्मॉल राउंड मूवमेंट्स। मीन जब आप ब्रश करते हो ना, ठीक है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत तेजी से, बहुत फास्ट ब्रश नहीं करना होता है। इससे क्या होता है? आपके जो टीथ हैं, आपके जो गम्स हैं, वो दोनों ही डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए और स्मॉल राउंड में, मीन्स अप डाउन स्लो आपको ब्रश करना चाहिए, ठीक है। नेवर ब्रश योर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, कभी भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ब्रश नहीं करना है, ओके। दिस कैन डैमेज द गम्स, इसकी वजह से क्या हो सकती है? आपके जो गम्स है, जो पिंक पार्ट है, जिन्होंने आपके टूथ को होल्ड कर रखा है, वो डैमेज हो जाएंगे और आपके पास टूथ भी फिर नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट है, रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील। जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, चाहे चॉकलेट, टॉफी, ये आप लोग बहुत ज्यादा ईट करते हैं ना, चॉकलेट, टॉफीज, है ना, कुछ भी ईट करो बेटा, लेकिन आफ्टर एवरी मील यू हैव टू रिंस योर माउथ। आपको क्या करना है? अपने माउथ को रिंस मीन्स कुल्ला करना है। यूज अ सॉफ्ट टूथ ब्रश, जो आपकी टूथ ब्रश होती है, जिससे आप टूथ को ब्रश करते हैं ना, वो हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट। एंड डेंटल फ्लॉस टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन योर टीथ। आपके टीथ के बीच में कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके स्टक कर लेते हैं, बीच में फंस जाते हैं ना, तो उनके लिए आपको डेंटल फ्लॉस का यूज करना है, ठीक है। कोई पिन वगैरह का यूज नहीं करना होता है, सेफ्टी पिन। मसाज योर गम्स विथ योर थंब। आपकी ये जो गम्स होती है, इनको किससे मसाज करना है? थंब से मसाज करना होता है, ओके। दे आल्सो नीड गुड केयर एज दे सपोर्ट द टीथ। तो उनको भी केयर की जरूरत है, क्यों? क्योंकि वो हमारे टूथ को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बेटा? सपोर्ट कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली, मीन्स आपको क्या करना है? देखो, विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर 6 मंथ फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप। आपको जो मीन्स आपको जो टीथ के जो डेंटिस्ट के पास जाना होता है। डेंटिस्ट कौन होते हैं? हाँ, यस, दे चेक योर टीथ, है ना, दे आर डेंटिस्ट, ओके। सो विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ में आपको किसके पास जाना है? डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है, फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप। आपके डेंटल चेकअप के लिए रेगुलर जाना है हर 6 मंथ में। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, टंग। नेक्स्ट टॉपिक इज टूथ इज कंप्लीट, ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ? How many types of teeth, kids? Tell me the name. Incision. Yes, incisors, canine, molars, and very good. Now tongue. Let's we talk about tongue. Okay, you already learned about tongue in your previous chapter, which is sense organs. Yes, tongue is our sense organ. What is the work of tongue? What is the work of tongue? To taste. We taste with the help of tongue. Okay.
Tongue is said to be the strongest muscular organ. This is the strongest muscular means मसल से बना हुआ ऑर्गन है. यहाँ पर कोई बोन नहीं है. आपकी टंग में बोन है? नो ना, ये बोनलेस है. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर ऑर्गन है. ठीक है. द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज टाइनी बम्प्स दैट कंटेन टेस्ट बड. तो आपका जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है ना टंग का, ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, एक पतला सा मीन्स टाइनी बम्प होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं आपके टेस्ट बड. यू नो अबाउट द टेस्ट बड ना? वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस टेस्ट बड इन आवर प्रीवियस चैप्टर. सो टेल मी द नेम ऑफ टेस्ट बड. You tell me, Naira. Tell me the name of taste buds. Sweet, salty, bitter, and sour. Okay, these are taste buds which help us to taste the thing. Taste bud की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो सॉल्ट इस साइड भी है और इस साइड भी है. ओके, बोथ साइड है. सॉल्ट इज लेफ्ट एंड राइट, बोथ साइड इज देयर, एंड बिटर इज अपर साइड एंड स्वीट इज लोअर साइड. ओके, दीज आर आवर टेस्ट बड्स. सिट डाउन नायरा. ओके, तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड ग्रुप्ड एरिया ऑफ द टंग. तो 4 टेस्ट बड्स हैं. दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई. ये हमें क्या आइडेंटिफाई, क्या पहचानने में हेल्प करते हैं? स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर. बिटर एंड यस, बिटर एंड सॉर. बिटर एंड सॉर. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Okay. Now last is how we take care of our tongue. How we take care of our tongue. Clean your tongue gently with tongue cleaner. आपको अपनी टंग को किससे क्लीन करना है? टंग क्लीनर से. ठीक है, एवरी मॉर्निंग. ठीक है, टू अवॉइड बैड ब्रीथ. टू अवॉइड बैड ब्रीथ, जो आपकी गंदी सी आपकी स्मेल नहीं आए, जो फाउल स्मेल माउथ से आती है ना, वो नहीं आएगी अगर आप अपनी टंग को भी क्लीन रखोगे. ओके, अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू स्पाइसी फूड. मतलब ज्यादा गर्म खाना और ज्यादा मसाले वाले फूड को क्या करना है, आपको नहीं ईट करना है, इसको अवॉइड करना है. Which can cause blisters on our tongue. देखो बेटा, you see in the picture, this is a blister. हाँ, this is a blister. What we call in Hindi means आप कहते हैं ना, मामा छाले हो गए है ना. So this is called blister. Okay, clear? So always take care of your teeth and your tongue. Okay, all of you understood this chapter? In our next class, we will do the question answer of this chapter. Okay? Okay, beta.